प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। नया एक कृषि विज्ञान केंद्र इससे हमारे और नई नई टेक्नोलॉजी को पहुंचाने का काम होगा और प्रशिक्षण देने का काम जिस तरीके से तो मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जो किसानों के कल्याण के काम हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, चाहे 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने का काम किया, तो किसानों के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से किसानों को आगे बढ़ाने वाले होंगे। और इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो काम हुए हैं तो निश्चित रूप से आज नॉर्थ ईस्ट है वो हिंदुस्तान के दूसरे देशों के प्रदेशों से आगे जिस तरह से जाने की होड़ में लगा हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से इस काम के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में सर बाकी जितना भी हम लोग का स्टेट है और नागालैंड के यहाँ पे इसके 7-8 लाख रुपए आ जाते हैं। हाँ हाँ, वो तो ड्राई करके भी पैकिंग करके करते हैं। चलो ठीक है। और बाहर में ज़्यादा ये वैल्यू है इसका वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल। अच्छा एक्सपोर्ट होता है ये। Welcome to our video. Today, Sri Kailash Chaudhary, Honorable Minister of State for Agriculture and Farmer Welfare, Government of India, he will visit our capital Dhemaji, and he will be having interactive session with farmer. He will also discuss on various topic, various issues faced by the farmer of this locality. And I would like to request everyone to watch the video till the end and share it. ৰক ফসফেট সেইখিনি মিহলি আমি তাক এনৰিচ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইখিনি যদি আপোনালোকে নিজৰ খেতিত ব্যৱহাৰ কৰে বা আপোনাৰ চেল কৰিব পাৰে, কেঁচুসাৰৰ দাম যদি 15 টকা হয় সেইটো আপোনালোকে 30 रुपीसকে চেল কৰিব পাৰে। ট্ৰাইকোডাৰ্মা আজিকালি লিকুইডো থাকে, লিকুইডো আছে, কিন্তু আমাৰ তাতে আমি এইটো পাউডাৰৰ পৰা বনাওঁ, টেলকম বেছ পাউডাৰৰ পৰা বনাওঁ। আৰু এটা কথা হ'ল কি, আপোনালোকে ট্ৰাইকোডাৰ্মাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানেনে? কেনেকৈ কি কৰিব লাগে? বেক্টেৰিয়া নহয়, ট্ৰাইকোডাৰ্মা ইচিনিয়া ফেটিডা, ESENIA FOETIDA, এইটো বেলেগ বেলেগ হয় না দুটা। একচুৱেলি কম্পোষ্টত আপুনি নাজানজনক কথাটো বুজাই দিব, হয়নে কথাটো? আপুনি সোধক কি সুধিব লগা আছে। আৰু তাৰমানে মিনিষ্টাৰ হোৱাত দেৰি হৈছে সেইকাৰণে কৰিছোঁ। চাওক দেই, বিজনেছ জানিব লাগিব আমি। বিজনেছ যদি নাজানো আমি খেতিত আমি যিমানেই চিঞৰি নাথাকোঁ, খেতিক আপোনালোকে কোনো নল'ব। খেতি যদি প্ৰফিটেবল নহয় কোনো খেতি নকৰিব। খেতিত কষ্ট আছে, যদি প্ৰফিট নাথাকে কিয় কৰিব? মানুহে কয় খেতিত সন্মান নিদিয়ে। সিদিনাখন কোনোবাই কৈ আছিলে
যদি খেতিত প্ৰফিট থাকে টকা থাকে মানুহে খেতিক সন্মান কৰিবই কিন্তু প্ৰফিটটো আপোনাৰ ওপৰত কথা আপুনি চিন্তা কৰিব লাগিব যে মোৰ বস্তুটো মই ক'ত বেছি হয়নে কথাটো কওক হয় হাৰি ল'ব পাৰোঁ অঁ সেইটো কাৰণেতো আমাৰ ইয়াত লাভ নাই 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 তেনেকুৱা মই কিন্তু আপোনাক দৰে মই ভবা নাই মই আপোনাৰ দৰে কিয় ভবা নাই আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলত এটা সমস্যা হৈ আছে আমাৰ মানুহবিলাকৰ মাটি খুব কম গতিকে অলপ কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি বিগ বায়াৰ আনিব নোৱাৰোঁ বহুত কিনা একদম যি বহুত লৈ যাব লাখত লৈ যাব আমি আনিব নোৱাৰোঁ পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানাত মানুহে কিয় পাৰে জানে সিহঁতৰ বহুত মাটি আছে আৰু সিহঁতৰ সংগঠিত কৃষকবিলাক সিহঁতে বাৰ্গেনিং পাৱাৰ আছে যে আমি ইমানৰ কমত নিদিওঁ কাকো নিদিওঁ আপোনালোক যদি লগ হৈ যায় যে চবে যদি মৌ মাখি ধেমাজিত কৰে যে মই ধেমাজিত 1000জন মানুহৰ 10টা বা 20টাকে মৌ মাখি বক্স আছে আমি একেলগে দাম ফিক্স কৰিম মই ভাবোঁ তেতিয়াহে ভাল হ'ব মাৰ্কেট কনচেপ্টটো এতিয়া মাৰ্কেট ইণ্টেলিজেঞ্চ এই মাৰ্কেটটো আপোনালোকে ট্ৰেক কৰিব লাগে সেইটোত এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আমি গুৰুত্ব দিব লাগে ভেলু চেইন এষ্টাব্লিছমেণ্ট যে আমি মৌ মাখিটো কৰিলে আপোনাৰ এই প্ৰডাক্টখিনি ক'ত যাব আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে নহয় আমি কিদৰে ৰখি আছোঁ এতিয়া আমাৰ ছাৰ অহালৈ আমি বাট চাই আছোঁ আমি গোটেই আমাৰ KVK ষ্টাফ আৰু আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰায় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ আৰু ধেমাজি এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাফ সকলোৱে আমি বাট চাই আছোঁ ছাৰলৈ আৰু ছাৰ আহিলে আমি ছাৰক আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ থেংক ইউ চাই থাকিবচোন আপোনালোকে গম পাইছে নহয় ছাৰ আহিছে বৰ্তমান আৰু ছাৰ আহিছে আমি ছাৰক লৈ এতিয়া আমাৰ কনফাৰেঞ্চ হললৈ আমি লৈ যাম আৰু তাত তেখেতে অলপমান বক্তৃতা দিব তাৰপিছত আৰু তেখেত যাব তেখেতৰ ফ্লাইট অলপ সোনকালে আছে বুলি কৈছে সেইকাৰণে তেখেত যাবগৈ তাৰপিছত চাই থাকক আপোনালোকে আৰু ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ শেষলৈ চাব শেষলৈ চালেহে অলপ আপোনালোকে বুজি পাব কিয় আহিছিল বা কি কৰিছিলে এভৰিথিং আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো থেংক ইউ গতিকে আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ ইয়াত আমাৰ মাননীয় ৰাজ্যিক কৃষিমন্ত্ৰী আমি এটা আমাৰ ফালৰ পৰা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা তেখেতক ফেলিচিটেট কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ফেলিচিটেট কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰয়োজন গুঞ্জন গগৈ
কেন্দ্ৰীয় কৃষি ৰাজ্যমন্ত্ৰী কৈলাশ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগু ডাঙৰীয়া, স্থানীয় বিধায়ক ভূমন পেগু ডাঙৰীয়া, আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া, কৃষি বিভাগৰ ইয়াৰ বিষয়াসকল, আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিষয়াসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত শিক্ষক বন্ধুসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল, মই আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমি অকণমান সময়ৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, এইকাৰণে যে আমাৰ KVK-খনৰ অৰিজিনেল লোকেশ্যন আৰু অৰিজিনেল বিল্ডিং আমাৰ ক'ৰবাত থাকি গ'ল, আৰু যাৰ কাৰণে আমি আন্তঃগাঁথনিৰ যথেষ্ট অভাৱৰ মাজেদি আমাৰ কৃষি বিভাগে ইয়াত কাম কৰি আছে, KVK ধেমাজিয়ে কাম কৰি আছে। তো সেই বিষয়টোকে মই তেখেতক বুজাবৰ কাৰণেহে আজি বিশেষভাৱে ইয়াত ভিজিটটো আমি ৰাখিলোঁ। গতিকে বেলেগ একো তেনেকুৱা নাই। तो साहब को तो मैं हेलीकॉप्टर में ही सारा चीज में बता दिया, शायद साहब ने भी रियलाइज किया होगा कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र था वो डिस्प्यूटेड लैंड में बन गया, जो अभी एबांडन बिल्डिंग जैसा हो गया, और दोबारा हम लोग यहाँ लगभग 40 एकड़ जैसा हम लोग जमीन लिया, और इस जमीन पे काफी हेरों से पैसा मिला के ये थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और इसी पे रह के हमारा साइंटिस्ट लोग काफी अच्छा काम कर रहा है। पूरा डिस्ट्रिक्ट में KVK का मतलब फार्मर्स का बीच में काफी पॉपुलर है। तो अभी मैं मिनिस्टर साहब को इसीलिए लेके आया कि ये सारा चीज साहब को समझाना था, शायद साहब समझ में आ गया होगा, और मेरा यही विनती है कि इसको खड़ा करना है तो कैसे किया जाए, तो साहब को भी सोचना है। बस इसी मकसद लेके आज ये कार्यक्रम। Now I request our Honorable Minister Sir to address the gathering. भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर हमारे बीच में हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और बहुत ही एक्टिव ऊर्जावान लोकसभा में भी अपनी बात को बुलंद आवाज में रखते हैं, ऐसे आदरणीय हमारे प्रधान बरुआ जी और हमारे कृषि के मंत्री यहाँ के एजुकेशन मंत्री आज हमारे बीच में है। तो ऐसे हमारे आदरणीय श्री रेणु जी, और साथ ही हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक पवन पेगू जी, और अटारी के डायरेक्टर आदिवान जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर DC आदरणीय अरुण जी, और यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे अधिकारीगण, उपस्थित सभी यहाँ पर इस कृषि विज्ञान केंद्र के अटारी के और ICR के सभी साइंटिस्टगण, अधिकारीगण और सभी किसान भाइयों और बहनों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे सांसद महोदय के, हमारे मंत्री के, विधायक महोदय के प्रयास से यहाँ पर ये कृषि विज्ञान केंद्र खड़ा हुआ। इन्होंने अपने मत से, अपने सहयोग से, सबसे सहयोग लेकर यहाँ पर ये कृषि विज्ञान केंद्र बनाया है, क्योंकि अपना जो कृषि विज्ञान केंद्र था उधर चला गया अरुणाचल में, और इतना जल्दी ये बनाना ये खुद की प्रेरणा से, क्योंकि इनके मन में कृषि के प्रति है,
किसानों के लिए जो सोच है, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जो सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए है, उसी सोच को आज देखा जाए तो किसान जिस तरह से खुद अपने कृषि के उत्पादन को बढ़ा रहा है, किसानों के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनी है, उसे न चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया किसान को देना हो, और चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया हो, या 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं, ड्रोन दीदी योजना शुरू की है, किसानों को नई टेक्नोलॉजी देना। ये टेक्नोलॉजी पहले हमारे देश में नहीं थी। आप सभी उत्कृष्ट किसान हैं, यहाँ पर जिन्होंने अच्छा अपने खेत के अंदर काम किया है, तो मैं आप सबको एक काम सौंप के जाता हूँ कि आप जो बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने खेत के अंदर, उत्कृष्ट किसान आप तो बन गए, लेकिन क्या मेरा भाई पड़ोस में है जो किसान, जिसको तो उसको हम कैसे जोड़ें, हमारे भाई पड़ोसी को भी साथ में लेकर, जब तक एक भी व्यक्ति पीछे रहेगा तो विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। तो हम सभी को साथ लेकर हमारे जो पड़ोसी जो भाई है उनको भी हम साथ जोड़ें और हम अपने देश को विकसित बनाएं। यही बात मुझे आप सबसे कहनी थी, किसानों के उज्जवल भविष्य की आप सबकी कामना करता हूँ। और पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को कि ये बहुत शानदार भवन यहाँ पर जो आपने बनाया है, तो इसमें सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी किसानों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पुनः मिलेंगे। और जो हमारे साइंटिस्टों ने यहाँ पर बात की है प्रमोशन की, तो मैं उन प्रमोशन के लेकर निश्चित रूप से आपको कहूंगा कि इसके ऊपर आपको विचार करके जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का समाधान कैसे हो, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और किसानों के लिए भी यहाँ पर जो भवन है, इसमें एक्स्ट्रा किस तरह से और भवन बन सके भारत सरकार की ओर से, तो निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा। यहाँ पर जितनी भी ज्यादा सुविधा हो, मैं तो कहना चाहता हूँ जब आपने इतना स्वयं में बना दिया, इतना अच्छा हॉल भी यहाँ पे, मैं दूसरे कई कृषि विज्ञान केंद्रों में गया, लेकिन इतना बड़ा हॉल मुझे देखने को कम ही मिलता है, लेकिन आपने जो बनाया इतना अच्छे हॉल की व्यवस्था की है, तो ये मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान का बेस्ट केवीके के अंदर इनका नाम आए, तो ये भी और आएगा, इसमें कोई डर नहीं। मैं आज आपको कह के जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी हमारा कार्यकाल तो अब वापस जनता देगी, क्या पता कि कौन सा मंत्रालय मिलेगा, अगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई जरूरी नहीं। पार्टी है भाजपा, इसमें तो आपको पता है कि अब द्रौपदी मुर्मू जी, उनको पता नहीं था, वो बूथ पर काम कर दिया, अब राष्ट्रपति बन गए। हमारे कई ऐसे मुख्यमंत्री जो विधायक बने, पहली बार पीछे बैठे थे, वो आज यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, विधायक पता नहीं चलता। तो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका अभी मेरे पास समय, कल तक मैं फाइल चला के जाएंगे, तो जो भी आगे आएगा तो निश्चित रूप से वो उस काम को और आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये बेस्ट कृषि विज्ञान केंद्र बने, उसमें सबका सहयोग जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे साइंटिस्ट करें, किसानों को भी सबका साथ की जो प्रधानमंत्री ने बात की है, सबका साथ होगा तो ये कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे किसानों का निश्चित रूप से यहाँ के आगे बढ़ेंगे। तो यही बात मुझे कहनी थी और प्रधानमंत्री का पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के अंदर ये जो विकास काम किया है और आने वाला भविष्य निश्चित रूप से हम सबका उज्जवल हो, ऐसी शुभकामना के साथ पुनः मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब ने मेरी बात को सुना, मेरा स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत कुछ बातें कहनी थी, लेकिन आपको पता है कि समय इजाजत नहीं दे रहा है। अभी फ्लाइट है तो जल्दी वहां पर पहुंचना है, तो आप सबके दर्शन करने के, सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मैं आदरणीय एमपी साहब आपको धन्यवाद देता हूं। और एक बार पुनः मैं आपके यहाँ पे आऊंगा अपने अगले कार्यकाल के अंदर, आपके पास यहाँ पर आगे कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर पुनः मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की, भारत माता की।